اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کا لطف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ آج آپ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ آج میں آپ کے بے حد پسندیدہ موضوعات میں سے ایک پر بات کروں گی، یعنی پرہیزگاری اور ضبط نفس۔ اور میں جانتی ہوں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ جوائس آج آپ اس پر بات کرنے والی ہیں، لیکن سنیں، اپنے ٹی وی کو بند نہ کیجیے گا کہ میں آج پرہیزگاری پر تعلیم دینے والی ہوں۔ ہم سب کو نظم و ضبط پر اچھے پیغامات سننے کی ضرورت ہے۔ آج صبح کسی نے مجھ سے کہا وہ ان چپس کی بات کر رہے تھے جو آپ کو ایک میکسیکن ریسٹورنٹ میں جانے پر دیے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا میں تو بس ایک کھا کر بالکل بھی بس نہیں کر سکتی، مجھے تو بس کھانا اور کھاتے چلے جانا ہوتا ہے۔ اب یہ تو سچائی نہیں ہے، کیونکہ ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ایک مضبوط اور پختہ ارادے کو اپنائیں۔ سو ایک کہانی ہے جو یہاں میرے سامنے ہے، جو میرے خیال سے بات کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کرے گی۔ اس کہانی کا نام ہے آئس کریم۔ کیا آپ کو آئس کریم پسند ہے؟ اچھی بات ہے، پھر آپ دلچسپی سے سنیں گے کیونکہ آپ کو آئس کریم پسند ہے۔ آپ کہیں گے مجھے پسند نہیں ہے جوائس، مجھے آئس کریم بے حد پسند ہے، یہ میری کمزوری ہے، میں آئس کریم کو کبھی نہ نہیں کر سکتی۔ میں کہتی ہوں آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کہیں گے نہیں کر سکتی، مجھے بے حد پسند ہے۔ دیکھیں، جب ہم اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کھیل کی شروعات سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ آدمی ویسا ہی ہے جیسے اس کے دل کے خیال ہیں۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آدمی وہاں جاتا ہے جہاں اس کی سوچ جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم فلاں کام نہیں کر سکتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، یا ہم سوچتے ہیں کہ ہم میں پرہیزگاری یا ضبط نہیں، اور دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں کہ میرا تو خود پر کوئی زور نہیں ہے۔ اور آپ جتنا ایسا سوچیں گے اور کہیں گے اتنا ہی ایسا ہوگا، کیونکہ آپ کی سوچ الفاظ میں اور الفاظ اعمال میں بدل جاتے ہیں۔ میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ آپ آئس کریم کو نہ کر سکتے ہیں۔ سوچئے، آپ دنیا کے سب سے بڑے اچھے آئس کریم پارلر میں ہیں، جن کے پاس آپ کی سوچ میں آنے والے ہر طرح کے فلیور کی آئس کریم ہے، یعنی آپ کے خواب و خیال سے بڑھ کر کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا شخص پوچھتا ہے آپ کو کیا چاہیے، نام لیں اور میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اور لذیذ ترین آئس کریم تیار کرے، جیسی آپ نے پہلے نہیں دیکھی، اور وہ ایک بڑے سے چمچ کے ساتھ آپ کو وہ تھما دیتا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، کیا آپ اس آئس کریم کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ چلے کہانی کو ایک نیا موڑ دیتے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑا چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈالنے والے ہیں۔ کیا آپ کو ذائقہ ابھی سے محسوس ہو رہا ہے؟ اور ٹک کی آواز آتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ٹھنڈی سلاخ آپ کے سر کے ساتھ آپ کی بائیں آنکھ کے کونے پر لگا دی گئی ہے، اور ایک بڑا بالوں بھرا ہاتھ آپ کی کنپٹی پر بندوق تانے کھڑا ہے، اور ایک بھاری سی آواز میں بولتا ہے کہ اگر آئس کریم کو چھوا تو کھوپڑی کھول دوں گا۔ میں آپ سے پھر پوچھتی ہوں کہ کیا آپ اس آئس کریم کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یقیناً آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کسی بات کو کرنے کا نتیجہ اس قدر برا ہو سکتا ہے تو ہم ہمیشہ اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ سو نظم و ضبط کے معاملے میں بہت بڑا کردار خواہش کا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی راہ نکال لیتے ہیں۔ میں ہمیشہ ورزش کو لے کر بہانے بنایا کرتی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اور میں یہ ماننے لگتی تھی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں سوچتی کہ سارے سفر کے ہوتے ہوئے آتے اور جاتے اتنا وقت لگ جاتا ہے، میں کیسے ورزش کو وقت دے سکتی ہوں یا ٹرینر کے پاس جا سکتی ہوں، کیونکہ میں کبھی مستقل مزاج نہیں رہ پائی۔ اور بالآخر خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ تجھے بس وہ کرنے کی ضرورت ہے جو تو کر سکتی ہے، اور جو نہیں کر سکتی اس کی فکر نہ کر۔ ذرا اس پر غور کریں کہ کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ سمجھ آیا؟ کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے ہمیشہ بہتر ہے۔ مطلب اگر میں 5 منٹ ورزش کر لوں تو یہ کچھ بھی نہ کرنے سے بہتر ہے۔ سو اس سوچ کے ساتھ کہ کچھ کر لینا کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے، تو پھر میں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اتنا اچھا لگا کہ بہت جلد میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی چاہت کرنے لگی،
और इसका फल मुझे वो मिला जो मुझे पसंद आया। मुझे वर्जिश पसंद नहीं थी, लेकिन उसके नताइज पसंद थे। पहली बार मैं छोटे साइज की पैंट खरीदने वाली बनी। मैं वर्जिश से जुड़ी रही क्योंकि अच्छा दिखाई देने की चाहत, वर्जिश ना करने की चाहत से बढ़ गई। मैं वर्जिश तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर हम ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन हम वो काम इससे बढ़कर करना चाहते हैं जितना कि हम ये काम करना नहीं चाहते, तो फिर हम ये काम इस वजह से कर लेंगे। हमेशा एक सरमायाकारी या एक बीज की जरूरत होती है जिसे हमें लाजमी बोना होता है ताकि हम मतलूबा नताइज को पा सकें। अब तो 15 साल गुजर चुके हैं और मैं अब तक वर्जिश करती हूँ अपने ट्रेनर के साथ हफ्ते में 3 बार। और जहाँ तक मेरी बात है, जब तक मैं पूरे तौर पर नाअहल नहीं हो जाती, जो कि होने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बाकी की तमाम जिंदगी वर्जिश करूंगी। मैं अपने ट्रेनर से कह रही थी कि जब मैं 90 बरस की हो जाऊंगी तो क्या तब भी मैं कर पाऊंगी? मैं किसी मखसूस उम्र को पहुंचकर इसे तर्क नहीं करना चाहती। जो भी मैं करूं, जो मैं कर सकती हूँ, और मैं वैसे ही वो नहीं कर सकती जो मैंने 15 साल पहले किया था। मुझे अपने उठाने वाले वजन को कम करना पड़ा, कुछ वर्जिशों को तब्दील करना पड़ा, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ करना हमेशा कुछ ना करने से बेहतर है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये आज की अहम बातों में से एक है। आप वो कर सकते हैं जो कुछ आप वाकई करना चाहते हैं। आपको पता है कि आपको या मुझे फतह पाने के लिए जिंदगी में ज़ब्ते नफ्स की जरूरत है। पौलुस रसूल ने नज़्मो ज़ब्त और ज़ब्ते नफ्स के मुतालिक क्या कहा? वो जानता था कि उसे खुद को तंबीह करनी है ताकि लायक तौर पर बाकी लोगों को सिखा सके। जानते हैं, जब खुदा ने मुझे सिखाने के लिए बुलाया, उसने मुझे सिर्फ खड़े होकर बहुत से लोगों के सामने कलाम को सिखाने का शर्फ ही नहीं बख्शा, बल्कि मुझे खुद को भी मुख्तलिफ तौर पर तंबीह करनी पड़ी कि अगर मैं ये करूंगी तो ये अच्छा नहीं होगा। किसी और को कुछ ऐसा ना करने की तालीम दूं जो मैं खुद कर रही हूँ। दरहकीकत रियाकार ऐसे ही को कहते हैं। लोगों की नजर में रियाकार इंसान से बढ़कर बेइज्जत कोई भी नहीं, जो आपसे कहता है कि ये ना करना जबकि खुद वैसा ही करता है। पहला करंथियों 9 की 25 से 27 में पौलुस कहता है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। अब जरा उस परहेज और जब्त के मुतालिक सोचें जो एक दौड़ने वाले को सारी जिंदगी करना पड़ता है, या कोई ऐसा शख्स जो जिम्नास्टिक्स करता है। जो कुछ वो अपने जिस्म से कर सकते हैं हैरान कुन है। लेकिन अगर आप एक मूवी देखें जो किसी ऐसे ही इंसान की जिंदगी पर मबनी हो, तो आप ये भी देखेंगे कि जब वो 7-8 साल के होते हैं तो जिम में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जबकि बाकी लोग बाहर खेल और मजे कर रहे हैं। और ये आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कह रही कि खेलने और पुरलुत्फ होने का फैसला गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में अगर आप वाकई कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो काबिले कदर हो, तो आपको किसी न किसी मामले में अपनी तरबियत करने का फैसला करना होगा ताकि आप उस चीज को हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं। मैंने कल की तालीम में इसका जिक्र किया कि कुछ लोग जुएबाज होते हैं और कुछ सरमायाकार होते हैं। कुछ लोग हमेशा गलत काम करते हैं या कुछ करते ही नहीं है, इस उम्मीद से कि उन्हें बहरहाल बरकत मिल ही जाएगी और एक अच्छा फल पाएंगे। देखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर वो सरमायाकार भी आते हैं जो ठीक काम आज करते हैं, भले ही करना मुश्किल होता है। वो आज कोई कुर्बानी देते हैं ताकि कल उसका सिला हासिल कर सके। पौलुस इब्रानियों को 12 की 11 में लिखता है, और बिलफेल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। क्या आपको बात की फिक्र है? जरा सोचें और गौर करें कि एक पहलवान ये सब इसलिए करता है ताकि उसे वो ट्रॉफी, वो इनाम मिल सके जिसे वो अपने घर में सजा सके, या कुछ ऐसा पैसे जीतने के लिए भी करते हैं। लेकिन अगर हम सही काम आज करेंगे तो कुछ ऐसा हासिल करेंगे जो अबद तक कायम रहेगा। सो हमें खुद में उनसे और कितना ज्यादा जब्त लाने की जरूरत है जो ऐसा किसी जिस्मानी मकसद की खातिर करते हैं। सो पौलुस कहता है कि बस मैं बेठिकाना
نہیں دوڑتا, میں ہوا میں مکے نہیں مارتا, بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں. سنیے, کچھ ترجموں میں لکھا ہے میں اپنے بدن کو مکے مارتا اور قابو میں رکھتا ہوں. اکثر مسیحی اسے غلط پڑھتے ہیں, انہیں لگتا ہے کچھ اور ہی لکھا ہے, جبکہ وہاں یہی لکھا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں. میں اپنے بدن کو خود پر حکمرانی کرنے نہیں دیتا, بلکہ اس پر حکمرانی کرتا ہوں. آپ کا اپنے بدن پر اختیار ہے اور آپ کو ہرگز بھی اسے خود پر اختیار جمانے دینا نہیں چاہیے. میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں. دیکھیں, یہ میرے لیے بہت اہم ہے اور امید ہے بطور مسیحی آپ کے لیے بھی اہم ہے کہ میں دنیا میں ایک اچھی مثال قائم کروں. میں نہیں چاہتی کہ میری گاڑی پر ایک بڑا سا بمپر اسٹیکر لگا ہو, یا گلے میں ہمیشہ ایک بڑی سی سلیب لٹکا کر گھوموں, یا اپنی بائبل کو کام پر لے کر جاؤں اور کھانے کے وقت ایک کونے میں بیٹھ کر دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھوں. میں اپنے بدن کو مسیحی ہونے کے ناطے سے روح کے پھل کے ذریعے سے ظاہر کرنا چاہتی ہوں, اور ہم سب کے اندر روح کے پھل ہیں. اگر آپ کے اندر یسوع ہے تو آپ کے اندر روح کے پھل ہیں, لیکن یہ بیج کی صورت میں آتے ہیں اور ہمیں ان کی نشوونما کرنی پڑتی ہے تاکہ پھل بڑھتا جائے, بڑھتا جائے, بڑھتا جائے اور زیادہ ہوتا جائے. میں کہانی سناتی ہوں کہ جب میں نے ورزش کرنا شروع کیا 15 سال پہلے, میں ایک دن ایک بوٹ میں بیٹھی تھی اور میں نے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دے رکھی تھی, سو میری ٹانگیں اس طرح تھی اور مجھے کھجلی محسوس ہوئی. سو میں نے وہاں کھجلی کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ایک ابھار سا محسوس کیا. میں نے سوچا میرے خدایا یہ کوئی رسولی ہے یا کیا ہے, اور پھر میں نے دوسری ٹانگ پہ ہاتھ لگایا, وہاں بھی ایسا ہی تھا. اور پھر اچانک سے مجھے سمجھ آیا کہ یہ تو پٹھا ہے, اور دیکھیں وہ میری ورزش کرنے کا پھل تھا اور مجھے اس کے بارے میں خبر ہی نہ تھی, کیونکہ اس سے پہلے ایسا کچھ نہ تھا. مجھ میں طاقت تھی اور آپ میں بھی مسلز کو بنانے کی طاقت ہے, لیکن آپ کو اس مسلز کا استعمال کرنا ہے تاکہ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے. اور یہی معاملہ روح کے پھل کے ساتھ بھی ہے. آپ لوگوں سے جتنا زیادہ مہربانی سے پیش آئیں گے اتنا ہی آپ لوگوں سے مہربانی کرنے کے لائق بنیں گے. آپ جتنا صبر کریں گے, جتنا زیادہ صبر آپ اپنی بے چینی کی حالت میں رکھیں گے, صابر ہونا آپ کے لیے یا میرے لیے اتنا ہی آسان ہوتا جائے گا. میں یہ صرف آپ کو نہیں سکھا رہی بلکہ یہ میرے لیے بھی ہے. پولس کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں, کیونکہ جو میں نے ان سے کرنے کو کہا میں خود نہیں کرتا. اسے جس کام کے لیے بلایا گیا اس میں کامیاب ہونے کے لیے اسے ضبط کا استعمال کرنا پڑا. بہت سے لوگ جب خدا سے مانگتے ہیں کہ انہیں کچھ خاص کرنے کے لیے بلائے تو یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی ایک قیمت بھی ہوگی. دیکھیں, نجات مفت ہے, لیکن ہماری زندگیوں پر مسا ایک خاص قسم کی زندگی گزارنے سے آتا ہے. اور مسا محض ایک لفظ نہیں ہے جو آج کل بہت سنائی دے رہا ہے, بلکہ مجھے مسا کے متعلق بہت کچھ سکھایا گیا کہ خدا کا مسا کس قدر اہم اور گہرا ہے. پرانے عہد نامے میں بادشاہوں اور نبیوں کو مسا کیا گیا, انہیں کسی خاص مقصد کے تحت بلایا گیا اور ان کے سر پر تیل انڈیلا گیا جو کہ مسا کرنے کی علامت ہے. اور آج پاک روح ہے اور تیل خدا کے کلام میں پاک روح کو ظاہر کرتا ہے. مسا کے لیے پاک روح ہم پر انڈیلا گیا ہے جس سے ہم خدا کے لیے بڑے کام کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاک روح ہماری زندگیوں پر انڈیلا جائے تو ہم جتنا اس طرز زندگی کو اپنائیں گے جو خدا چاہتا ہے کہ اپنائیں, اتنا زیادہ ہم خدا کی حضوری اور اس کے اختیار کو اپنی زندگیوں میں پائیں گے. ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ مفت ہے اور خدا ہم پر مہربانی کرتا ہے, ہمیں برکت دیتا ہے, اور وہ ایسا کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نجات مفت ہے. جی مفت ہے, لیکن اس نے قیمت ادا کی ہے. جب آپ اس بات کی گہرائی میں جاتے ہیں تو کچھ بھی مفت نہیں ہے. ایسی چیزیں ہیں جو میرے لیے مفت ہے, یا ہم آپ کو ایک کتاب مفت دے سکتے ہیں, لیکن اگر ہم آپ کو کتاب مفت دے بھی دیں تو بھی ہمارے وہ پارٹنرز جو ہماری منسٹری کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس کتاب کی قیمت ادا کرنے میں مدد کریں گے. سو کہیں نہ کہیں فرما برداری کے بیج کے ہمیشہ بوئے جانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو یا کسی اور کو برکت مل سکے.
आप जानते हैं फरीसी ढोंगी थे, और किसी भी और से बढ़कर यसु ने उन फरीसियों के लिए कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि रियाकार हैं, ढोंगी हैं। अगर आप कभी वो बाब पढ़ना चाहें जो बताता हो कि वो ऐसे लोगों के मुतालिक क्या सोचता है जो ढोंगी है, तो मत्ती 23 को पढ़ लें। उसमें एक जगह लिखा है, जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो। वो कहते हैं और करते नहीं। क्या आप अपने बच्चों को बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना? क्या कभी आपने उन्हें झूठ पर सजा दी और फिर बाद में जब फोन की घंटी बजी और आपको पता लगा कि फोन की उस तरफ कोई ऐसा बोल रहा है जिससे आप बात नहीं करना चाहते, और आपने अपने बच्चे से कहा कि कह दो अम्मी घर पर नहीं है? जी, आपने उन्हें जो सही काम करने की तालीम दी थी उस पर खुद ही पानी फेर दिया। फ्रांसिस एसेसी की बात मुझे बेहद पसंद है। उसने कहा कि हर वक्त मुनादी करो और जब जरूरत पड़े तो फिर कलाम करो। यानी हमें जरूरत है कि हमारी जिंदगियां निजात के पैगाम की मुनादी करें। हमें उस जिंदगी को लोगों को दिखाने की जरूरत है जो खुदा हमें दे सकता है, अगर हम उसकी राहों पर चलें, और इसमें परहेजगारी और ज़ब्त नफ्स की जरूरत है। मैंने खुद में ज़ब्त पैदा किया ताकि हर रोज उठकर खुदा के साथ वक्त गुजारूं, क्योंकि अगर ऐसा ना करूं तो कभी बाहर की दुनिया में निकलकर लायक तौर पर बर्ताव नहीं कर सकती। मुझे इसकी जरूरत है। मैं इस पर शरीयत की तरह या कानून के तौर पर अमल नहीं करती कि मुझे इसे मानना ही है ताकि खुदा मुझ पर कहरअंगेज ना हो जाए। मेरा खुदा के साथ वक्त गुजारना या मुताला करना खुदा के लिए नहीं, मेरे फायदे के लिए है। जितना ज्यादा मैं कलाम को जानूंगी, सो आए सीखें और उन कामों को करने के लिए तैयार हूं जो हमें मुस्तकबिल में फायदा दें, और आए अपने आज को इस तवक्को और आरजू में जाया ना करें कि हमारे लिए कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। उसने कहा, वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। उंगली से भी। आप कितने बासलीका हैं जो खुदा ने आपको दिया, आप उसकी कदर करते हैं। आपका घर, आपकी जायदाद। देखें, सच कहूं तो मेरा मकसद तल्ख बातें कहना नहीं है, लेकिन आप एक शख्स की गाड़ी में बैठकर बता सकते हैं कि उसे किस किस्म का सलीका है। अगर वो कूड़े करकट से भरी और गंदगी और लापरवाही से रखी गई है, तो आपको खासा यकीन होने लगेगा कि उसकी जिंदगी में ऐसे और भी मामलात होंगे जिसमें वो बातों की बेकदरी करता है। आप कहेंगे, मुझे गाड़ी धुलवाने की फुर्सत कहाँ? इन जदीद कार वॉशेस में से किसी एक पर जाएं। खुदा ने हर काम के लिए तरीके मुहैया कर रखे हैं अगर हम कुछ करना चाहें। सेहत पर बात करते हैं। खुदा की तरफ से सेहत एक नेमत है। क्या आप इसकी कदर करते हैं? मैं शर्तिया कह सकती हूँ, अगर नहीं करेंगे तो वो दिन आ जाएगा जब आप अफसोस करेंगे कि जब आपको कुछ करना चाहिए था आपने नहीं किया। देखिए, मैं आपसे सच कहूंगी, मैंने अपने इब्तिदाई सालों में मिनिस्ट्री में बहुत मेहनत की। मुझे याद है जब मैं हर साल 36 मुकम्मल कॉन्फ्रेंसेस किया करती थी। ये महीने की 3 बनती हैं और वो 2 रोजा कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, और उस वक्त मैं हर कॉन्फ्रेंस में 4 से 5 सेशंस किया करती थी, और मेरे पास कोई ना था जो मेरी मदद करता। मैंने ही सब कुछ किया। मुनादी भी मैंने की। प्रस्तिश में रहनुमाई को छोड़कर मैंने सब किया। अगर वो भी मैंने किया होता तो लोग चले जाते। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। और सोने पे सुहागा ये कि हर तरह का बोलने का काम भी मैंने ही किया। मैं ऑफिस में भागी, हर तरह का जरूरी सामान इकट्ठा किया। हमारे पास चंद काम करने वाले लोग थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी काम के मामले में किसी दूसरे पर भरोसा या एतबार कैसे किया जाता है। सो मुझे लगा अगर काम को ठीक होना है तो सब काम मुझे ही करना है। और धीरे धीरे मैंने खुद को बीमार कर लिया, और मैं कह सकती हूँ कि ये इब्लीस का काम है, लेकिन उसके लिए दरवाजा तो मैंने ही खोला। अपना बेहतर ख्याल ना रखकर मैंने ऐसा किया, जबकि मुझे रखना चाहिए था। सो मैं आज आपसे मिन्नत करती हूँ कि अपना ख्याल रखें, पूरी नींद लें, पानी पिए बजाय सोडा पॉप के 6 कैन हर रोज पीने के। इतना काम हरगिज ना करें कि आपका जहन हर वक्त तनाव का शिकार रहे। और हाँ, यहाँ सलीके की जरूरत है।
अगर आप हर वक्त थके रहते हैं तो अपनी जिंदगी पे गौर करना शुरू करें और देखें कि आप किन किन कामों को करने से परहेज कर सकते हैं ताकि आपके पास आराम करने का वक्त रहे। सच कहूँ तो मैं कुछ करने वालों में से हूँ। मैं कुछ करने को कुछ ना करने पर तरजीह देती हूँ, लेकिन मैं 77 बरस की हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सब करने के काबिल बनी रहूं उस दिन तक जब तक यीशु मुझे इस दुनिया में छोड़े रखे। सो जैसे कि इस हफ्ते मैं कल यहाँ स्टूडियो में थी और आज फिर से यहाँ हूँ। कल सुबह मेरी एक अपॉइंटमेंट है जो कि तकरीबन 1.5 घंटे की है और फिर मुझे पता है कि मुझे आराम की जरूरत है, पूरे दिन के आराम की, क्योंकि मुझे फिर जुमेरात और जुम्मे को भी कुछ करना है। यकीनन मैं किसी दोस्त के साथ खाना खाने या शॉपिंग करने का इरादा भी कर लेती, लेकिन मैंने मार खाकर सीखा। प्लीज सुने जो मैं कह रही हूँ, मैंने मार खाकर सीखा है। क्या आप में से किसी ने मार खाकर सीखा है? देखें, लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आप अपने कामों को करना कैसे सीखते हैं। आप अपने कामों को अपने तजर्बे से सीखते हैं। हम कुछ गलत करके सीखते हैं और फिर हमें कुछ सही करना आ जाता है। खुदा कभी हमें कुछ करने को नहीं कहता अगर वो करना हमारे लिए बेहतरीन ना हो। क्या आप मुश्किल वक्त या रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा रहे हैं? क्या आप बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत सा बाहर का खाना खाते हैं? क्या आप कलाम की मुनादी के लिए दिल खोल कर देते हैं? और क्या आप लोगों की मदद करते हैं? क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार किसकी मदद की थी? ये सब ऐसी बातें हैं जिनके लिए बाइबल कहती है खुदगर्ज और मतलबी ना बनो, लेकिन इसके लिए जब्त की जरूरत है, क्योंकि देखें, खुदा से जुदा होकर तो मैं ऐसी हूँ कि जो मुझे चाहिए बस चाहिए, और हर वक्त मुझे अपना पैसा देने या लोगों की मदद करने का भी दिल नहीं चाहता। मेरे पास एक मंसूबा है और मैं उसके तहत ही चलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा दूसरों की मदद और खिदमत के लिए दिल को खोलना है, जो पौलुस रसूल ने कहा बड़ा शानदार है। पता नहीं मुझे यहाँ जल्दी जल्दी से मिलता है या नहीं, लेकिन पौलुस ने कहा कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की। क्या बात है, ये उसका इंतखाब नहीं होगा, लेकिन उसने खुद को सब लोगों का खादिम बना लिया। शायद ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर आप चाहते थे कि मैं आज तालीम दूं बजाय परहेजगारी और ज़ब्ते नफ्स के, लेकिन मैं नहीं समझती कि दूसरी कोई बात आपको इन बातों को सीखने से बढ़कर फायदा पहुंचा सकती है अगर इसे वाकई सुने। बाइबल में लिखा है खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि कुदरत और मोहब्बत की, पुरसुकून और तरबियत की, परहेजगार रूह बख्शी है। यह एम्पलीफाइड तर्जुमा है। आमाल 24:25। पौलुस फिलिक्स को रास्तबाजी और परहेजगारी और आइंदा अदालत का बयान कर रहा था, और बाइबल कहती है, और जब वो रास्तबाजी और परहेजगारी और आइंदा अदालत का बयान कर रहा था तो फिलिक्स ने दहशत खाकर जवाब दिया, इस वक्त तू जा, फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। क्या बात है। नहीं पौलुस, मैं इस तालीम के लिए फिलहाल तैयार नहीं। मुझे इस पे एतराज नहीं, लेकिन अगर तालीम खुदा की बरकत के हवाले से हो, लेकिन मैं इस परहेजगारी की तालीम के लिए तैयार नहीं। देखे, मैं उम्मीद और दुआ करती हूँ कि आप खुश हुए होंगे जब आपने सुना कि मैं ज़ब्त और परहेजगारी पर तालीम देने वाली हूँ, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप एक समझदार मसीही हैं जो सही काम करने के लिए तैयार हैं, भले ही वो करना आसान नहीं है। गलतियों 6:9 में लिखा है, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, बल्कि अच्छा बीज बोते रहें, और क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। ऐन वक्त क्या है? जब भी खुदा को लगे कि अब सही वक्त है। हमें अक्सर लगता है कि हम चीजों के लिए तैयार हैं, लेकिन उमूमन सच में तैयार होने से बहुत अरसा पहले हमें लगने लगता है कि हम तैयार हैं, और खुदा का शुक्र है वो हमें इतना नहीं देता जितना संभाल न सकें। ये एक प्यार भरी हौसला अफजाई है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी बातें हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं, जिनमें आपको परहेजगार बनने की जरूरत है, खुदा आपकी मदद करेगा, और वो ऐसा नहीं करता कि कुछ करने को कहे और आपकी मदद ना करे। मैं आपसे आज ही एक बदलाव लाने की इल्तमास करती हूँ, ताकि आप उस जिंदगी का लुत्फ उठा सकें जो यीशु आपको देना चाहता है।